यूएसए के टॉप लीडरशिप कमला हैरिस, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का ये स्पीच सुनिए। Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. The death of the leader of Hamas represents a moment of justice. He had the blood of Americans and Israelis, Palestinians and Germans and so many others on his hands. I told the Prime Minister of Israel yesterday, let's also make this moment an opportunity to seek a path to peace, a better future in Gaza without Hamas. Well, my reaction is he was not a good person. That's my reaction. That's sometimes what happens. I think it makes it easier. He's called me. I have not spoken. I'm going to speak to him probably now. ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हमास के लीडर याह्या सिनवार के डेथ को। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पर अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। सिनवार और हमास के कुछ और मिलिटेंट को इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने रफा के एक बिल्डिंग में घेर लिया, जिसके बाद सिनवार के मिलिटेंट्स और इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के बीच में हैवी फाइटिंग हुई। ये फाइटिंग काफी घंटों तक चली, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के सभी मिलिटेंट को मार गिराया और सिनवार को भी हैवी डैमेज पहुंचाया। उसका एक हाथ कट गया। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्नाइपर की मदद से सिनवार को मार गिराया। आप एक ड्रोन फुटेज देखिए जो कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने रिलीज किया। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कितना हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ है। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का फाइटिंग हुई होगी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और हमास के मिलिटेंट के बीच में। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि एक सोफे पे एक व्यक्ति बैठा है जिसका हाथ कटा हुआ है। यही है सिनवार। आप देखिए सिनवार के हाथ में शायद से एक रॉड भी है। जब ड्रोन सिनवार के पास जाता है, आप देख सकते हैं सिनवार उस रॉड को उठाता है और सिनवार उस रॉड को उठा के सिनवार अब देखेंगे आप किस तरह से ड्रोन के ऊपर मारता है। इसके बाद जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को लगा कि सिनवार अभी तक जिंदा है, तब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस स्नाइपर की हेल्प से सिनवार के सर में गोली मारते हैं और सिनवार मारा जाता है। जब आप मीडिया रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट में ये पढ़ने को मिलेगा कि सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पर अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि हिटलर के बाद सबसे ज्यादा ज्यूज को किसी ने मारा है तो वो सिनवार है। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone.
The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. बट आपको एक बात मैं बता दूं कि सिनवार करीब 20 साल तक इजराइल के जेल में रहा था, लेकिन इजराइल के एक भारी मिस्टेक के बाद जब इजराइल ने अपने एक सैनिक को छुड़ाने के बदले ऑलमोस्ट 1000 हमास के फाइटर को रिलीज किया था, जिसमें से एक सिनवार भी था। ये 2011 में हुआ था। तब से सिनवार ने अपने लाइफ का एक मिशन बनाया था तब से सिनवार ने अपने लाइफ का एक मिशन बना लिया था कि किस तरह से हैवी डैमेज किया जाए इजराइल को और यहूदी लोगों को मारा जाए। उसके बाद सिनवार ने सालों तक प्लानिंग की और आखिर में जाके 7 अक्टूबर 2023 को अंजाम दिया। इस अटैक के बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के मुहाने पे आके खड़ा हो गया है। इस पूरे सिनेरियो में एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये देखने को मिलती है, जब इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें सिनवार 7 अक्टूबर 2023 के अटैक से जस्ट पहले कुछ घंटों पहले की फुटेज है, जिसमें सिनवार अपने फैमिली के साथ एक अंडरग्राउंड टनल में शिफ्ट हो रहा है। वहां पे सिनवार के पास सारी की सारी लग्जरियस चीज, फ्रिज, टीवी, जो भी एक इंसान को सर्वाइव करने की चाहिए, वो सारी सारी चीजें मिल रही है। यहाँ तक ही नहीं, अगर आप इस फुटेज को ध्यान से देखेंगे, इस फुटेज में सिनवार की वाइफ के हाथ में बर्किन का एक हैंडबैग है जो कि करीब $32,000 का है। लीडर कहीं का भी हो, डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर हो या फिर मोनार्क कंट्री का लीडर हो या फिर वॉर चल रहे कंट्री का लीडर हो, एंड ऑफ द डे आम लोग ही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सफर करते मरते। इससे पहले इस लड़ाई में हमास के कई सारे टॉप लीडरशिप मारा जा चुका है, जिसमें इस्माइल हानिया का भी नाम शामिल है। हाल ही में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा जा चुका है। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस और इजराइल के इंटेलिजेंस का किस हद तक पेनिट्रेशन है हमास के ऑर्गेनाइजेशन में, हिजबुल्लाह के ऑर्गेनाइजेशन में। इतनी आसानी से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के डायरेक्ट टॉप लीडरशिप को टारगेट कर पा रहा है और उनको मार गिरा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में।